Yes, I was waiting for that indication. Thank you, Akshay, for playing that song. And thank you, Arnav and Arunima, for that skit, because it has really made my work a little easier this morning, because you took the same passage and you did a very cute skit. I was wanting to see where the pigs are, but of course it was imaginary. And I like that skit. बहुत अच्छी skit आप दोनों ने करी, अर्नव और अरुणिमा, और मेरा काम आपने थोड़ा आसान कर दिया आज, उसके लिए धन्यवाद. Mark Twain was once interviewed by a reporter, and the reporter asked him, "People say you are the best storyteller ever lived." Mark Twain से एक रिपोर्टर ने पूछा इंटरव्यू में कि लोग कहते हैं कि आप सबसे अच्छे कहानी सुनाने वाले व्यक्ति हैं. What do you have to say about that? इसके बारे में आपका क्या कहना है? Twain said, "I am not the best storyteller ever lived." Twain ने कहा कि मैं सबसे अच्छा कहानी सुनाने वाला व्यक्ति नहीं हूं. Then the reporter asked, "Who would you regard as the greatest storyteller ever lived?" रिपोर्टर ने पूछा, फिर आप किसको कहेंगे, कौन है जो आज तक सबसे अच्छा कहानी सुनाने वाला व्यक्ति रहा है? He said, "It would be Jesus." उसने कहा, वो होगा यीशु मसीह. रिपोर्टर asked him, "If so, what is the greatest story ever told?" यदि ऐसा है तो रिपोर्टर ने पूछा कि सबसे अच्छी महान कहानी कौन सी होगी? And he said, "The prodigal son." और उसने कहा कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी. Perhaps this is one story from the Bible that all fathers love to tell their children. शायद बाइबल में से ये एक ऐसी कहानी है, and the sons in particular, जो सारे माँ बाप जो हैं, बाप जो हैं, वो लड़कों को ये कहानी अपने बचपन में अवश्य सुनाते हैं, और कई बार सुनाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. और क्यों सुनाते हैं ये हम इस कहानी को पढ़ के इसमें समझ सकते हैं. आई वाज वंडरिंग that in this story, why the son is there, why not the daughter? कि ये जो कहानी है उड़ाऊ पुत्र की या खर्चीले पुत्र की कहानी है, इसमें बेटे को क्यों लिया गया, बेटी को क्यों नहीं लिया गया? And then I thought perhaps the daughter becomes prodigal after marriage. मुझे ऐसा लगा हो सकता है शादी के बाद जो है बेटी वो उड़ाऊ बन जाए, उससे पहले शादी. Just what I thought, and it's very risky to say that because in this room only my wife and I are here, so I take that risk to say that. बड़ा जोखिम उठा के मैं इस बात को कह रहा हूँ. But there's a reason I'm saying that. Many years ago I had a student in the 90s, and she was just so average in studies. पढ़ाई लिखाई वो करती नहीं थी. She would just waste her time around here and there, and we thought that what will she do in life? Like at that point we used to think. एक स्टूडेंट थी, बहुत 90s के एंड की बात है, और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी. मैं सोचता था जीवन में क्या करेगी आगे जाके, पता नहीं, इस तरह से. Some years ago, maybe 5-6 years ago, on Facebook we connected, and I saw that she got married to a pilot, an Air Force Indian pilot, and I was shocked. तो मैंने देखा कि उसकी शादी जो है वो एयरफोर्स के पायलट के साथ हुई. And I saw some pictures, and you know how the army, the lifestyle is. And then I connected and I said, "So wow." He says, "Sir, my husband is a pilot. मेरा husband pilot है, and we are posted here." And then they start telling about the lifestyle. No, army के हैं, so we have this. I said, "So like, what do you do like apart from that?" He says, "Nothing. My husband earns, and my job is to spend." That is exactly what she said. And that reminded me of the same student who was 10, 15, 20 years ago. So that is why the thought came to me. But that is just to give you a little light beginning to this parable. सिर्फ थोड़ा सा आपको व्यंग के लिए मैंने ये कहा. But the truth is that whenever this story of the prodigal son is shared, is told, it changes lives. जब भी वचन में से इस कहानी को बताया जाता है, समझाया जाता है, इससे जीवन लोगों के बदलते हैं और बदले हैं. Now, often people may think of God as a harsh God,
a cosmic killjoy sitting there just waiting to zap someone who doesn't follow the commands. कभी कभी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा है जो बैठा है कहीं पे, देख रहा है, बस कोई गलती कर दे और उसको हम पकड़ ले, उसको सजा दे दें. But this story takes our focus on God as a loving father full of grace. ये जो कहानी है ये हमें बताती है परमेश्वर के चरित्र के बारे में, जो एक प्रेम करने वाले पिता के समान है और जो अनुग्रह से भरा हुआ है. In fact, if you really pay attention to the close details of the story, you will disagree with the title, The Prodigal Son. अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें, पढ़ें, इस पे विचार करें, तो जो इसका शीर्षक दिया हुआ है उड़ाऊ पुत्र, इस शीर्षक से शायद आप अग्री ना करें, आप इससे सहमत ना हो. इट्स अबाउट द प्रोडिगल फादर. एक्चुअली ये जो कहानी है वो उड़ाऊ पिता के बारे में है. A father who is so extravagant in love and grace. एक ऐसा पिता जो अपने अनुग्रह में और अपने प्रेम में बहुत ही ज्यादा दरिया दिल है, उड़ाऊ है. And if you focus on the son, you may miss a more profound side of the story. और अगर इस कहानी में सिर्फ हम पुत्र के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे तो एक बहुत ही एक महान विचार है शायद जो हमसे थोड़ा सा छूट जाए. So it's a story about two sons, but we will focus only on one. कहानी तो दो पुत्रों के बारे में है, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो एक ही पुत्र पे रहेगा. Now, according to the culture, it was a major insult to the father to ask for inheritance while the father was alive. जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी उस समय की, उसमें पिता से अपना हिस्सा मांग लेना जबकि पिता जिंदा है, ये उसके लिए बहुत इंसल्ट थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा खराब बात थी ऐसा करना. You are not supposed to get any inheritance before the death of the father. और पिता की मृत्यु से पहले आपको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था. And to ask the father to give the share of inheritance while he's alive is what it's like telling the father to drop dead. और पिता जबकि जिंदा है और उसमें ये हिस्सा मांगना, ये ऐसे कहना होगा कि मतलब कि आप कामना कर रहे हैं कि पिता की मौत हो जाए. Now the story tells us that the father doesn't ever try to deny the request. ये कहानी हमें ये बताती है, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि पिता ने ये जो उससे ये बात कही गई थी, ये जो उससे रिक्वेस्ट करी गई थी, इसको पिता ने मना नहीं किया. But willingly he gives the inheritance to the son. लेकिन अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से उसने जायदाद का हिस्सा अपने पुत्र को दे दिया. The father is covering for the son's insult. जो पिता है वो बेटा ने जिस प्रकार से उसकी बेइज्जती करी थी ये कह के, उसको वो ढांक रहा है, उसको कवर कर रहा है by letting himself take that insult. और जब उसने खुद ही उसको वो सारा हिस्सा दे दिया तो एक प्रकार से जो बेइज्जती थी वो पिता ने खुद अपने आप पर ले ली. It's like that he's saying that I want the community to think that I broke the rule rather than my son broke the rule. शायद वो ये कहना चाह रहा था जो उसका समाज था कि मैंने खुद नियम को तोड़ा है, उसको ये उस जायदाद देके, मेरे बेटे ने नियम को नहीं तोड़ा है. He was trying to cover the sins of the son so that the community wouldn't despise the son. जो गलत काम उसका बेटा कर रहा था उसको उसने ढांक दिया ताकि जो लोग हैं वो उस पर उंगली ना उठाने पाए. That's an example of his extravagant grace. यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिता की जो दरिया दिली है और एक पिता का जो अनुग्रह से भरा हुआ जो दिल है, उसको हम यही शुरुआत में ही देख सकते हैं. And that is why the story should really be looked upon as the prodigal father. और इसीलिए इस कहानी को देखना चाहिए इस शीर्षक से कि ये उड़ाऊ पिता की कहानी है. Verse 13. Let's come to verse 13. Not long after that, the younger son
got together all he had, set off to a distant country, and there squandered his wealth in wild living. क्या हुआ यहाँ पे कि उसने अपने जायदाद का सारा हिस्सा ले लिया और उसके बाद एक दूर देश में चला गया और वहां जाके उसने जितना भी पैसा था, जो भी जायदाद थी, उसने सब उसको उड़ा दिया और दुनियावी तरीके से, सांसारिक तरीके से दोस्तों पे इधर उधर सब लुटा दिया. And you know that shows the fact that a person can live a life the way he or she wants with total disregard to God. ये मुमकिन है और ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत कर सकता है, इस प्रकार से अपने जीवन को व्यर्थ में खर्च कर सकता है और इस प्रकार से कि मानो परमेश्वर उसके जीवन में है ही नहीं. बिना परमेश्वर को मानते हुए एक इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है. You may think that you're having a great time with no restrictions. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अब तो मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और अब मेरा कितना अच्छा समय बीत रहा है. I have no one to check me, I have no one to correct me, I'm having a great time. Perhaps that is what he was thinking, what he was going through while he was squandering the wealth. What was the result? What happened? Let's look at verse 14. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to the fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. सब पैसा उसका खत्म हो गया और अब उसके पास खाने को भी नहीं था. तो वो अब गया और वो तो विदेशी था, उस देश में नौकरी मांगने लगा और कोई नौकरी भी नहीं थी. और एक व्यक्ति ने कहा कि तुम ऐसा है, जो मेरे ये सुअर हैं इनको जाके तुम चरा सकते हो और जो वो खाना खाते हैं वही खाना तुम भी खा सकते हो. किसी ने उसको कुछ नहीं दिया. फिर उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में जो मेरे नौकर हैं, जो पिता के नौकर हैं, वो भी कितना अच्छा खाना खाते होंगे और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूं. इट्स अ पिटी, अ रिच मैन सन ईटिंग पिग्स फूड. कि एक धनी व्यक्ति का बेटा जो है वो सुअर का खाना खा रहा है. अ स्लेव इन अनदर कंट्री, एक दूसरे देश में एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है. इट्स डिटेस्टेबल. ये घिनौना है अपने आप में. And what can we learn from here, from this point? Ultimately, all godly values in your life can come to an end, and you may become spiritually bankrupt when we are living a life far away from God. हमारे अंदर परमेश्वर ने जो भी हमारे अंदर एक जमा पूंजी अपनी रखी थी, परमेश्वर ने अपनी वैल्यूज हमारे अंदर रखी थी, all the godly things, all of that can get spent off and we can become spiritually bankrupt. जब परमेश्वर से दूर होते हैं और अपने अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम आत्मिक रूप से दिवालिया बन सकते हैं. Maybe we may not get bankrupt financially, but you may definitely get bankrupt spiritually. हो सकता है आर्थिक रूप से आप अभी भी सक्षम रहें, लेकिन आत्मिक रूप से अवश्य ही हम दिवालिया बन जाएंगे अगर हम परमेश्वर से दूर इस प्रकार का जीवन बिताएंगे जैसे इस कहानी में ये पुत्र बिता रहा था. You would be spiritually empty. There's a complete lostness. आत्मिक रूप से आप खाली महसूस करेंगे कि आत्मा में कुछ नहीं है और अंदर से भी एकदम हम खोए हुए हैं. We're lost. And you know what the world will say? The world will say, you got what you deserved. संसार आपसे कहेगा अब जो किया है उसका फल तुम भुगत रहे हो. And one philosophy will say it is karma. लोग कहेंगे ये कर्मा है. Now you got to live with this. तुमने ऐसा ऐसा किया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया,
अब तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। बट यू सी, द स्टोरी इज नॉट अबाउट द सन, बट स्टोरी इज अबाउट द फादर हार्ट ऑफ गॉड। ये जो कहानी है वो पुत्र के बारे में नहीं है, ये कहानी परमेश्वर के पिता के हृदय के बारे में है। एंड गॉड टर्न्स द कर्मा अराउंड ओवर हियर। गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट, God does not accept karma. Karma would have said, that's the way you live, that's what you deserve. God says over here, no, and we'll see that story. कर्मा कहेगा कि जो आपने किया है वैसे ही आपको भरना पड़ेगा, जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो हृदय है वो पिता समान हृदय है। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, verse 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Heaven means God, in biblical language. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. अब वो और सोचने लगा, और अपने आत्मा में सोचने लगा कि मेरे पिता के पास भी इतने नौकर चाकर हैं जो काम करते हैं घर पे, और मैं तो यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं क्या करूं, मैं पिता के घर में वापस जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरे विरोध और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और मैं तो तेरा बेटा भी कहलाने लायक नहीं हूं, तो मुझे अपना एक नौकर बना के ही घर में रख ले। और ये सोच के वो अपने पिता के घर में चला गया। एक्सट्रीमली क्रूशियल पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर। जब ऐसा हो रहा था तो एक बहुत ही खास विशेष बात को हम यहाँ पे सोच सकते हैं। नो मैटर हाउ स्पिरिचुअली बैंकरप्ट वन में बिकम, चाहे कोई कितना भी आत्मिक रूप से गिर जाए, दिवालिया बन जाए, नो मैटर हाउ फार यू हैव गॉन अवे फ्रॉम गॉड द फादर, कितना भी दूर आप परमेश्वर पिता से जा चुके हैं, द रोड टू रिटर्न बैक टू द फादर इज नेवर क्लोज्ड। परमेश्वर पिता के पास लौटने का रास्ता कभी बंद नहीं होता है, कभी नहीं बंद होता है। बट दैट जर्नी बिगिंस विद रिपेंटेंस। लेकिन ये जो लौटने का रास्ता है वो पश्चाताप के साथ ही शुरू होता है। As the son is saying this to himself, actually you can sense repentance in his heart. जब उस पुत्र को ये सब बातों का एहसास हुआ तो आप देख सकते हैं, आप भांप सकते हैं कि उसके विचारों में पश्चाताप आपको दिखाई दे रहा है। All these years, perhaps the son never understood his father's heart. ये सारे वर्षों में इस पुत्र ने कभी अपने पिता के हृदय को नहीं समझा। He thought that he may be allowed back as a servant. उसको लगा मेरा पिता शायद मुझे एक नौकर की तरह अपने घर में रख ले। When we are in a similar spiritual situation, where we need spiritual recovery, we may doubt God. कभी अगर हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं आत्मिक दृष्टि से, और हमें आत्मिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता है, आत्मिक रूप से हमें दोबारा सही होने की आवश्यकता है, तो हो सकता है हमारे दिलों में भी परमेश्वर के प्रति शंका आ जाए। We may start doubting God when we need spiritual recovery. Will he accept me? क्या परमेश्वर मुझे दोबारा ग्रहण करेंगे? How shall I show my face? मैं अपना चेहरा परमेश्वर को दोबारा कैसे दिखाऊं? What will God think of me? परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? I am such a gone case. मैं तो परमेश्वर से इतना दूर चला गया हूं, अब मैं कैसे वापस जाऊं? And the son was so wrong to doubt his father. यहां पर ये सारे शंकाएं जो पुत्र के मन में आ रही थी अपने पिता को लेकर के, वो कितनी गलत थी। उसकी सारी शंकाएं गलत थी। All his doubts were wrong. He was so wrong to believe that he has lost his sonship. और इस बात को सोचना कि उसने अपने पुत्र होने का अधिकार खो दिया है, ये शंका भी कितनी गलत थी।
the same emotions of worthlessness may also cloud us sometimes. हो सकता है ऐसे ही विचार कि हम कुछ नहीं है, हम बेकार हैं, हमारा कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, शायद ऐसे विचार भी हमारे जीवनों में कभी-कभी कुछ परिस्थितियों में आ सकते हैं. नो, वी आर नो गुड, यू आर नो गुड, हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लाइफ इज इन अ मेस, व्हाट अ वेस्ट, हमारा जीवन तो बेकार हो गया है, बर्बाद हो गया है, इट्स बेटर टू डाई. दैट्स द एक्सट्रीम. दैट्स हाउ सो मेनी पीपल कमिट्स डाई बाय सुसाइड. और अंत में लोग सोचते हैं कि अब तो मेरे जीवन का कोई काम ही नहीं, इससे अच्छा तो मर जाएं. नेवर बिलीव दैट लाई. इस बात पर कभी भरोसा मत करिएगा, ऐसी आवाजों पर. डोंट एवर लिसन टू सच वॉइसेस, डोंट एवर लिसन टू सच प्रॉम्प्टिंग्स. ऐसी आवाजों को जो आपसे ये कहती हो, इन आवाजों पर कभी भरोसा, विश्वास मत करिएगा. सो व्हाट डिड द सन डू? वर्स 20. He got up and went to his father. वो उठा और अपने पिता के पास वापस चला गया. But while was and it follows, while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. वो अपने पिता के पास गया और जब वो बहुत दूरी पे ही था, तो उस दूरी से ही उस पिता ने उसको देख लिया और उसके दिल करुणा से भर गया और फिर वो अपने पुत्र के पास दौड़ता हुआ गया और उसने अपने हाथों को से अपने पुत्र को गले लगा लिया और उसको प्यार किया. That this part also deserves a great deal of pondering. ये जो बात यहाँ कही गई है इस कहानी में, इस पर भी बहुत ध्यान हमको लगाने की आवश्यकता है. The fact that the father saw him from afar means that probably the father had been waiting for him day in and out, hoping the son would come back home. कि जो पिता था, पिता ने उस पुत्र को दूर से देख लिया. इसका मतलब ये बनता है कि ये जो पिता था, वो यह आशा कर रहा था, इंतजार कर रहा था प्रतिदिन कि शायद मेरा बेटा यहां से लौट के वापस आ जाए. And it's an indication again of God being the prodigal father. और फिर हमें एक बार यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो खुद एक खर्चीला पिता है. The son betrayed him, but instead of abandoning the son, he was waiting for the son to come back. कि एक ऐसा पुत्र जिसने पूरी जायदाद को उड़ा करके, नाम खराब करके चला गया, बजाय उसके कि पिता अब उससे कोई नाता नहीं रखता, लेकिन पिता तो प्रतिदिन उसका इंतजार कर रहा था कि कब लौट के आएगा. As the boy must have been rehearsing his speech on the way. हो सकता है पिता, जो पुत्र है, वो रास्ते में मैं क्या बोलूंगा उसको प्रैक्टिस कर रहा होगा. मैं पिता से ये कहूंगा, फिर मैं पिता से I will say this, I will say that. And he was preparing himself for the consequences. और फिर पता नहीं क्या होगा, पिता मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा. While he was, doing all that, the father saw him, ran to him, hugged him, and kissed him. That is the heart of the heavenly Father. ये है हमारे पिता, हमारे परमेश्वर का पिता समान हृदय. The heavenly Father waits for us to come back to him. हमारा पिता हमेशा हमारा इंतजार करता है कि हम कब पिता के पास लौट के जाएंगे. The heavenly Father longs for us to return back to him. हमारा परमेश्वर पिता हमारा इंतजार करता है, हमारे लिए रुका रहता है कि हम कब उसके पास लौट के जाएंगे. And Matthew 23:37, Matthew 23:37, Jesus said, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those who sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and yet you are not willing. O Jerusalem, O Jerusalem, तू वो है जो नबियों की हत्या करी और परमेश्वर के भेजे दूतों को पत्थर मारता है. मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे मैं भी तेरे बच्चों को एकत्र कर लूं, किंतु तू लोगों ने नहीं चाहा.
If today you feel that you have gone away from God for some reason, अगर आपको आज ऐसा महसूस होता है कि किसी कारण से, किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, इफ यू फील दैट योर लाइफ हैज मेस्ड अप, अगर आपको लगता है कि आपका जो जीवन है वो पूर्ण रूप से उथल पुथल उसमें मच गई है, इफ यू फील दैट यू आर इन अ होपलेस सिचुएशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन जो है एक उसमें कोई आशा नहीं बची है, आई वांट टू टेल यू दैट योर हेवनली फादर इज वेटिंग फॉर यू, कि आपका स्वर्गीय पिता आपका इंतजार कर रहा है. द सन डिड द राइट थिंग, ही वेंट बैक टू हिज फादर. उस पुत्र ने बिल्कुल सही काम किया, अपने पिता के पास वापस चला गया. लेट अस नोट वन थिंग ओवर हियर. एक बात को ध्यान से देखें. Even after he went back to his father and he saw the compassion of his father, he still said sorry. He still said sorry. वो अपने पिता के पास गया, जिससे पहले वो कुछ बोल पाता, पिता दौड़ के आया, पिता ने उसको गले लगाया, उसको प्यार किया, और बेटे ने देख लिया कि पिता ने अपना पूरा प्रेम उस पे पहले जैसा उंडेल दिया. He still said sorry. लेकिन फिर भी उसने पिता से माफी मांगी. That is true repentance. और ये है असली और सही पश्चाताप. The spiritual process of repentance must be undertaken before we start expecting God to start blessing us again, to start filling us with the grace again. जिससे पहले कि हम ये अपेक्षा करें कि परमेश्वर दोबारा से हमें आशीषित करे, परमेश्वर दोबारा से हम पे अनुग्रह करे, पश्चाताप का होना आवश्यक है. पश्चाताप का होना आवश्यक है. So therefore it is so important to accept God's lavish blessings with repentance. जब परमेश्वर अपने दरिया दिली से अपने अनुग्रह को हम पर लुटाता है, I will use the word लुटाता है, and the word loot is also in the English dictionary. हम पे परमेश्वर अपने धन को, अपने अनुग्रह को लुटाता है, तो आवश्यक है कि हम पश्चाताप के साथ उसको ग्रहण करें. Finally, verse 22 to 24. And let's just read that very quickly, 22 to 24. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and is alive again. He was lost and he is found. So they began to celebrate. And this is how Jesus depicts the prodigal father. यीशु मसीह ने इस प्रकार से इस उड़ाऊ लुटाने वाले पिता परमेश्वर का चरित्र चित्रण किया है. फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा हुआ, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह के ऊपर और अनुग्रह से भरा हुआ. गेट द बेस्ट रोब. द बेस्ट रोब वॉज द फादर्स रोब. जो सबसे अच्छा पहनने का वस्त्र था वो पिता का वस्त्र था. अपना वस्त्र उसने अपने बेटे पे डाल दिया. द रिंग वॉज अ साइन ऑफ रेस्टोर्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो अंगूठी उसके हाथ में पहनाई वो एक चिन्ह था कि दोबारा से उस पुत्र को अधिकार दिया गया, दोबारा से उस पुत्र को जिम्मेदारियां दी गई. द शूज वर अ साइन दैट ही वॉज इंडीड अ सन, because the servants don't wear shoes. He was not a servant, he was a son. वो तो सोच रहा था कि मैं नौकर की तरह रहूंगा, but he was, and of course he must have come bare feet. वो नंगे पैर ही आया होगा, लेकिन उसको पिता ने उसको पैरों में जूतियां पहनाई. और इस बात का सबूत था कि वो नौकर नहीं है, क्योंकि नौकर लोग जूतियां नहीं पहनते थे. He was the son. As I told you in the beginning, whenever you hear this story and whenever you think about it, it changes lives. जब भी इस कहानी को पढ़ते हैं, सोचते हैं,
तो जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए. And as we observe Father's Day today, let us put our focus on the father heart of God. जब हम आज फादर्स डे मना रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ध्यान हमारे परमेश्वर के पिता समान हृदय पर अपना ध्यान भी लगाएं. Let us also be grateful to him for all the blessings he lavishes on us. वो सारी आशीषें जो पिता हमारे ऊपर उड़ाता है, हम पे लुटाता है, उस पर भी थोड़ा सा हम ध्यान करें, उसके बारे में सोचें. If anyone ever experiences a separation from God, then always remember he is waiting there for you. अगर कोई आप में से ऐसा महसूस करता है कि परमेश्वर से हम अलग हो गए हैं, दूर चले गए हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है. He is waiting to forgive us. He is waiting to welcome us back. He is waiting to restore back everything. वो रुका हुआ है, आपको क्षमा करेगा, आपका वापस स्वागत करेगा, और जो कुछ भी आपने खोया है वो आपको पूरा करेगा. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you are indeed our prodigal father. परमेश्वर, आप हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को लुटाने वाले परमेश्वर हैं. Lord, we even cannot count the blessings that you have given to us, each one of us. प्रभु जी, हम गिनती भी नहीं कर सकते जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है और जो आपने हमें दिया है. Help us, Lord, this morning to be grateful to you and to be loyal to you for the kind of heavenly Father you have been to each one of us. परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं, और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हम आपके वफादार बने रहें. जिस प्रकार के पिता का रूप आपने हम सबको दिखाया है. Help us, Lord, never to go astray. परमेश्वर, हम कभी आपसे दूर ना जाने पाए. And this morning, Lord, if there's anyone who has gone astray, if there's anyone who is feeling in his heart or her heart that he or she is far from you, Lord, help them to come back to you. परमेश्वर, आज यदि कोई अपने दिल में ऐसा महसूस कर रहा है कि वो आपसे दूर है किन्हीं कारणों से, तो प्रभु आज उनको अपने वापस अपने घर में लेके आइए. Thank you, Lord, for being with us, and thank you for being our wonderful, wonderful heavenly Father. धन्यवाद प्रभु हमारे साथ रहने के लिए, और एक बहुत अद्भुत अद्भुत परमेश्वर पिता होने के लिए. In Jesus' name we ask. Amen.